70th question of exercise 2.2 is, if a and b are distinct positive primes such that cube root of a raised to power 6 b raised to power minus 4 equal to a raised to power x b raised to power 2y, then find x and y। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करने के लिए लेफ्ट एंड राइट साइड बेस को सेम करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट गिवन इक्वेशन क्यूब रूट ऑफ a raised to power 6 b raised to power minus 4 equal to a raised to power x b raised to power 2y, right? Now cube root of a raised to power 6 b raised to power minus 4 को हम लिख सकते हैं a raised to power 6 b raised to power minus 4 whole power 1 by 3 and equal to a raised to power x b raised to power 2y। Now exponents को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। a raised to power 6 into 1 by 3 यहाँ आ जाएगा a raised to power 6 by 3, b raised to power minus 4 into 1 by 3 minus 4 by 3 equal to, एंड इस साइड की टर्म एज इट इज़ रह जाएगी a raised to power x b raised to power 2y। ना यहाँ पर a raised to power 6 by 3 है, 6 by 3 को हम सोल्व कर सकते हैं, 3 2 जा 6, सो यहाँ पर आ गया a raised to power 2 एंड b raised to power minus 4 by 3 इक्वल टू a raised to power x b raised to power 2y। स्टूडेंट्स अब हम सेम बेस को कंपेयर करेंगे आपस में, जैसे a raised to power 2 equal to a raised to power x and b raised to power minus 4 by 3 equal to b raised to power 2y। now यहाँ पर देखिए बेस सेम है, पार्ट्स इक्वेट हो सकती हैं, सो 2 equal to x और x equal to 2। now यहाँ पर भी बेस सेम है, पार्ट्स को हम इक्वेट करेंगे, minus 4 by 3 equal to 2y and minus 4 by 3 into 2 equal to y, 2 2 जा 4 minus 2 by 3 equal to y और y equal to minus 2 by 3। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई एंड दिस वन x की वैल्यू x is equal to 2 and y equal to minus 2 by 3 and it's your answer। Now 18th question of this exercise is, if a and b are different positive primes such that a raised to power minus 1 b raised to power 2 by a raised to power 2 b raised to power minus 4 whole power 7 divided by a raised to power 3 b raised to power minus 5 by a raised to power minus 2 b raised to power 3 equal to a raised to power x b raised to power y, find x and y। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें x and y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये डिवीज़न का साइन रिमूव करेंगे। फॉर दिस first of all we will write given equation a raised to power minus 1 b raised to power 2 by a raised to power 2 b raised to power minus 4 whole power 7 divided by a raised to power 3 b raised to power minus 5 by a raised to power minus 2 b raised to power 3 equal to a raised to power x b raised to power y। now अब हम इस डिवीज़न के साइन को रिमूव करेंगे, a raised to power minus 1 b raised to power 2 a raised to power 2 b raised to power minus 4 whole power 7। जब हम इस डिवीज़न के साइन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन डालकर नेक्स्ट टर्म को हम रेसिप्रोकल कर देंगे, मींस जो टर्म डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगी एंड जो न्यूमिनेटर में टर्म है वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगी। सो a raised to power minus 2 b raised to power 3 ओवर a raised to power 3 b raised to power minus 5 इक्वल टू a raised to power x b raised to power y। नाउ स्टूडेंट्स अब हम एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करेंगे। a raised to power minus 1 into 7 a raised to power minus 7 b raised to power 2 into 7 b raised to power 14 by a raised to power 2 into 7 a raised to power 14 b raised to power minus 4 into 7 minus 28 into ये टर्म एज इट इज आ जाएगी a raised to power minus 2 b raised to power 3 a raised to power 3 b raised to power minus 5 equal to a raised to power x b raised to power y। नाउ स्टूडेंट्स जो टर्म डिनोमिनेटर में है अब हम उनको न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे। सो इसके लिए a raised to power minus 7 एंड डिनोमिनेटर में है a raised to power 14, तो ये न्यूमिनेटर में जाकर minus 14 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है हमारे पास b raised to power 14 एंड डिनोमिनेटर में है b raised to power minus 28, न्यूमिनेटर में जाकर प्लस 28 हो जाएगा। सो यहाँ पर ऐड हो जाएगा प्लस 28 इंटू a raised to power minus 2 a raised to power 3 जब न्यूमिनेटर में शिफ्ट होगा तो a raised to power minus 3 हो जाएगा। सो यहाँ पर आ जाएगा a raised to power minus 2 minus 3 एंड b raised to power 3
बी रेस्ट पर -5 न्यूमिनेटर में जाकर बी रेस्ट पर +5 हो जाएगा, सो यहाँ पर आ जाएगा +5 एंड इक्वल टू ए रेस्ट पर x बी रेस्ट पर y. नाउ a रेस्ट टू पावर -7 -14 -21 b रेस्ट टू पावर 42 इंटू a रेस्ट टू पावर -5 b रेस्ट टू पावर 8 इक्वल टू a रेस्ट टू पावर x b रेस्ट टू पावर y. नाउ स्टूडेंट सेम बेस को हम सॉल्व करेंगे. सेम बेस है एंड पावर z हो जाएंगी. -21 प्लस -5 इंटू बी रेस्ट पर 42 प्लस 8 बिकॉज सेम बेस है सो पावर z हो गई इक्वल टू ए रेस्ट पर x बी रेस्ट पर y. नाउ ए रेस्ट पर -21 प्लस -5 -26 एंड b रेस्ट टू पावर 42 प्लस 8 50 इक्वल टू ए रेस्ट पर x बी रेस्ट पर y. नाउ स्टूडेंट्स देखिए लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड बेस सेम है तो पार्ट्स को हम इक्वेट कर सकते हैं. सो ए रेस्ट पर -26 इक्वल टू ए रेस्ट पर x एंड बी रेस्ट पर 50 इक्वल टू बी रेस्ट पर y. बेस सेम है पार्ट्स इक्वेट हो जाएंगी. सो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 26 -26 एंड यहाँ पर y की वैल्यू आ गई y इक्वल टू 50 एंड इट्स योर आंसर. नाउ सेकंड पार्ट ऑफ 18th क्वेश्चन इज a प्लस बी होल पर -1 इंटू ए रेस्ट पर -1 प्लस बी रेस्ट पर -1 इक्वल टू ए रेस्ट पर x इंटू बी रेस्ट पर y देन फाइंड x प्लस वाई प्लस 2. स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें x प्लस वाई प्लस 2 की वैल्यू फाइंड करनी है. इसके लिए हमें x एंड y की वैल्यू पता होनी चाहिए. तो x एंड y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन में लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड में हम बेस सेम करेंगे. सो हमें x एंड y की वैल्यू मिल जाएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इक्वेशन लिखेंगे a प्लस बी होल पर -1 इंटू ए रेस्ट पर -1 प्लस बी रेस्ट पर -1 इक्वल टू ए रेस्ट पर x बी रेस्ट पर y. नाउ a प्लस बी होल पर -1 को हम लिख सकते हैं 1/a प्लस बी इंटू ए रेस्ट पर -1 को 1/a लिख सकते हैं प्लस बी रेस्ट पर -1 को 1/b लिख सकते हैं इक्वल टू ए रेस्ट पर x बी रेस्ट पर y. नाउ स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे. यहाँ पर आ जाएगा 1/a प्लस बी एंड ए बी एलसीएम आ जाएगा हमारे पास. b को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम b प्लस a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a आ जाएगा. सो b प्लस a बाई ए बी आ गया हमारे पास इक्वल टू ए रेस्ट पर x बी रेस्ट पर y. नाउ सो स्टूडेंट्स b प्लस a एंड a प्लस b बोथ आर सेम थिंग. तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a प्लस बी एंड b प्लस a को a प्लस बी ओवर ए बी इक्वल टू ए रेस्ट पर x बी रेस्ट पर y. ना ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो a प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो यहाँ पर हमारे पास आ गया 1/ab इक्वल टू ए रेस्ट पर x बी रेस्ट पर y. नाउ स्टूडेंट्स ए रेस्ट पर x एंड बी रेस्ट पर y x एंड y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें a b को न्यूमिनेटर में शिफ्ट करना पड़ेगा. सो 1/ab को हम लिख सकते हैं ए रेस्ट पर -1 इंटू बी रेस्ट पर -1 एंड इक्वल टू ए रेस्ट पर x बी रेस्ट पर y. So on comparing x equal to -1 and y equal to -1 and it's your answer.